We welcome you all in the name of Jesus in the house of the Lord. And we are here today with our mothers to glorify the name of the Lord, to worship Him, to praise Him. Amen. Because without the Lord, it was not possible for us to be here today. And it was not possible for us to have our mothers and to have their love. और आंटी ने मुझसे कहा है बताने के लिए कि what is a mother. और at this moment I would like to thank Aunty Sushila for being a good coach. उन्होंने ही coach किया और उन्होंने ये सब चीज़ लिख दिया हमें कि हम आपको बताएं. कहती है कि a mother, first of all when we describe we say a mother is a housekeeper, a cook. But a mother उससे ज़्यादा भी है, जबकि हम देख सकते हैं कि various field में mother रहती है. She is a teacher, she is a nurse, she is a coach. She can be a teacher also. She is a planner, she is an organizer, she is a best decision maker, a best friend, and at the end you can say a mother is a wonder woman. कैसे करो माँ तेरी
Before we move on to the Word of God, let's bow down in prayer. Hallelujah. Heavenly Father, we bow before you today. We bow before you, God, because we know that there is no other God but you. We come here this morning, we believe in our heart that this is where we will find love. This is a place where we'll be spiritually fed. This is where we will be met with all the needs that we have. Whether we are sick or we are in need of anything, oh God, we know that we are coming here in your house because this is where you are and this is where we are able to meet you, God. So, Father, thank you for everyone that are here today. I commit their lives, I commit their hearts into you this morning. That, Father, that they will be blessed. And today, oh God, I thank you for this privilege that you have given me to come and share your word. We are just vessels, oh God, that you will use today to share your living word. So, Father, thank you for the word that we will share. It will not return void. That is what you said, and we believe in that, oh God. So, Father, thank you once more for this wonderful time. We return to you the glory. In Jesus' name we pray. Amen. Forgive me for my voice. I've got a little flu, a little cold. So my voice is a little bit different. You have seen our theme. And our theme, it says, moving forward. What is it? Moving forward together. Well, it also, forward together. Okay, forward together. There are a few topics that we're all going to share. That is through faith, love, hope. And today I'm going to begin with us with forward together in hope. Amen? So forward together in hope. When we say forward together, it means it's not something that is stagnant, Nothing that is standing still. Forward, that means just keep moving. So our life should be moving, should not be standing still. So as our spiritual life should not be stagnant. If you look at yourself, this is Mother's Day now. If you look at yourself on the previous Mother's Day, if you have not moved forward, if you have not increased your faith, then there is something wrong. Then you are not moving. Amen? That's just a little tip on moving together. And together is another important word. Together means you're not alone. Amen? You are with some other people. So we are moving together, all of us. So when you come to Christian life, you are not supposed to be alone. Amen? We are supposed to be together. And what? We are supposed to be moving together. Amen? So I will just take us, we are given, 5 minutes? Okay, 5 minutes. I shouldn't exceed 5 minutes. Okay, Ephesians 4:4. Let's just look at Ephesians 4:4. Okay, my topic is in hope. I'll keep forward together in hope. Okay, let's just read Ephesians 4, Where is this? Sorry, I didn't. Okay, I'll just read from Ephesians 1 to 4. Okay, and the Word of God says, as a prisoner for the Lord, then I urge you to live a life worthy of the calling you have received. Be completely humble and gentle. Be patient, hearing with one another in love. Make every effort to keep the unity of the Spirit through the bond of peace. My goodness, my eyes is not good. There is one body and one Spirit, just as you are called to one hope when you are called. One Lord, one faith, one baptism, and verse 6 says, one God and Father of all, who is over all and through all and in all. Okay, so my topic today, I just want to encourage us. We're given 5 minutes. I want to encourage us that as we look
to our theme, Forward Together in Hope. Amen? Forward together in unity, in hope. Like I said, when we are together, it means it's a togetherness. No one is supposed to be moving by themselves alone. Paul was writing this letter while he was in prison. He was not allowed to go out of the house where he was imprisoned. But despite that, being in prison, the gospel kept going. The gospel kept moving. He was a missionary. And everywhere where he traveled a very rough trip during his missionary time. But while he was imprisoned, the gospel kept spreading. I don't know how, but that is, the word of God is alive and living. No one can stop it. But we thank Paul that despite him being in prison, the word of God kept going. So we can see how effective the word of God is. No one can stop it. The word of God, nobody can stop it. If the word of God wants to move, it will move. Even if you want to be standing alone and standing still, and you don't want to spread it, you won't be blessed because you are not spreading it. The word of God will keep moving. Somebody else will be used to spread the word of God. But the blessing will go to that person. Amen? Okay? So, you must remember that the word of God, the work of the Lord will keep going and keep moving. Okay. What I want to share with us today is the hope that we have in Christ. Hope, before we came to Christ, I'm so glad that we are all here knowing Christ. Because we now have a hope. Before we come to Christ, when you're in Christ, hope, we can say hope is something that your desire of something good that will happen in future. That is hope. You're hoping. Your desire, your heart desire that something good will happen in future. But when you come to Christianity in the world, when it comes to hope, that desire is hanging on the balance. Like, man, if somebody is traveling to Lambasa, he said, I hope my sister will reach safely to Lambasa. See, your hope is like that in the world. Something can happen on the way. The bus might break down, or there might be an accident along the way. So your hope is you're not sure whether she will reach or not. That is the world. Amen? But when you come to Christ, when your hope is in Christ, your hope is sure. Amen? You are sure that He has died on the cross. Amen? Jesus has died on the cross. He has been resurrected. And what did he say? He has prepared a place for us. Amen? That's in John 14. I'm going to prepare a place for you. And he said, I will come back and take you to where I have prepared for you. And that is our hope. You are hoping that you are going to go to the place where he is preparing. Amen? That's a sure shot hope. Sure that you are going to be in that place where he has prepared. Amen? Not like the hope that the world gives. I hope that she has reached Lambasa. But somehow there is an accident along the way. That is the hope of the world, not sure. Amen? That is the world gives you. But praise the Lord, we have a hope in Christ. A Christ who has never failed us. A Christ whom every promises he has in his book is so sure. But the catch is this. The catch is this. You have the will, it's in your court. The ball is in your court. The will for you to receive that hope that he has promised is all in you. Because he says, unless you believe, amen? Unless you believe and you receive and you obey and do it, then that hope that he is giving you will be fulfilled and it'll be yours. He has prepared a place, for sure, yes. But for you to actually go there, it's up to you. Amen? So our hope, he has already done it. Our hope is already there. Our hope is in Christ already. Yes. He died. He rose again. He has done everything. Everything he has done for us. Because
if he didn't die on that cross, there is no hope for us. Yes, no hope, eh? Everybody will just born, grow up. As soon as we die, everybody going to hell. Everybody going to hell. Everybody going to hell. But all of us sitting here today, we have a hope. Yes or no? Yes, we have a hope. But the ball is in your court. Whether you are going to receive that hope, fulfill that hope, it's all up to us. Amen? Yes? Okay, that is just a source of encouragement that I want to share with us for us today. That hope is already there. Our hope is already in Christ. Christ has already done everything for us. But it is up to you, it is up to me, whether we will actually receive that hope that we have. It's not like a bus ride to Lambasa kind of hope, that you know whether you're rich or whether you're not, because that's what the world, no promise, not sure. But hope in Christ is sure shot, positive. But it's up to you. If you believe it, and you receive it, and you have faith, that's where faith comes in, then you will receive everything that Jesus has already given you and promised you. He promised everything good for you. Everything he promised for you is good and promising. But it is up to you. Amen? How you receive it. Okay, but I will go back to our forward together. Eh? So, this hope in Christ. See, Christ, the Word of God says that he has brought us to one faith, one hope, and one God. Eh? And the emphasis, therefore, the emphasis that Paul is trying to teach us is that the life should have one spiritual truth. And the spiritual truth is of being, the spiritual truth that he wants to share with us today is the spiritual truth of our being togetherness in Christ. Irrespective of what. See, I'm any other kay tauke here? I think I'm the only one. But Jesus Christ, tokasa. But Christ has brought us together. Amen? The oneness that we have is only possible through Christ. And that is the hope that we want to share with you. Amen? That our oneness, our togetherness, our moving forward in unity, our only hope is in Christ. Nobody else. If Christ is not there, then our working together, our moving together, our uniting together is not possible. Amen? So do you want to see us working together and moving forward together? Do you want to see this church doing that in future? It's possible. It is possible in the hope that we believe that Christ has already done it for us. Amen? Excuse me. Because if you don't have that much faith that Christ has done it, then our togetherness, our working and moving forward together, our unity, it will not be possible. Amen? See, we have a big commitment coming up, and it needs unity. It needs working together. It needs believing together. It means having the same faith together. Everything has to be together. Amen? And only that is possible through the hope that we have, which is in Christ and Christ alone. Amen? So, my 5 minutes is over. So the little message that I want to encourage with you today, that what? We can move forward together. Amen? Everybody say amen? Amen. Yes, we can move forward together. Whether you can pull a hammer in your hand or you can't, we can do it together. Whether you can push one wheelbarrow or you can't, we can do it together. Whether you can cook one big pot, we can do it together. Amen? But that is only possible with what? With the hope that we have in Christ, who has already done the work he has done on Calvary and who has united us in him through Christ. Amen? So where is our hope in? Our hope is in Christ and Christ alone. Amen? If she wasn't there for us, then who would care? Who would look after me? I mean, as kids.
And when we go through pain and when we go through troubles, she cries with us. When we fall down and we get hurt, she complains and yells at us. हमें डांटे है. Why didn't you tell me कि तुम्हें चोट लगा? So that is what a mother is. So we're just going to sing it in this song, and I hope it goes well. इतनी फिक्र क्यों करती है तू, इतना प्यार क्यों करती है, रात में जब तक घर नहीं आऊं तब तक क्यों जगती है। माँ तू नहीं होगी तो बता, मेरी कौन करे परवाह। माँ तू नहीं होगी तो बता, मेरी कौन करे परवाह। पूछे है कभी अपना हाल सुना। तू नहीं होगी तो बता, मेरी कौन करे परवाह। तू नहीं होगी तो बता, मेरी कौन करे परवाह। वक्त नहीं देता हूँ तुझको, ये मेरी मजबूरी है। हक तेरा ही पहला है, फिर भी तुझसे क्यों दूरी है। दूर इतना तुझसे रहा हूँ, मुझको गले से लगा। माँ तू नहीं होगी तो बता, मेरी कौन करे परवाह। माँ तू नहीं होगी तो बता, मेरी कौन करे परवाह। कब है वक्त ये मुझको पता है, इसीलिए डर लगता है। फासले क्यों उम्र की देखो, ऊपर वाला रखता है। जब जाना हो दूर अकेले, मुझको भी ले जा। तू नहीं होगी तो बता, मेरी कौन करे परवाह। तू नहीं
God is so great. He's so mighty good. Amen. I thank my God for this opportunity today. हम परमेश्वर के धन्यवाद देते हैं इस मौका के लिए हमें मिला है कुछ शेयर करने आप लोग के साथ में. Amen. जब पुलपिट के पास आते कभी धक धक मारे लगे नो बट परमेश्वर जैसे हमारा टॉपिक है इन फेथ है ना, तो फेथ के द्वारा हम पुलपिट के पास आए हैं आप लोग के पास शेयर करने के लिए. Amen. और आज हमारा टॉपिक है इन फेथ, मूविंग फॉरवर्ड इन फेथ. विश्वास में है ना. विश्वास में साथ साथ आगे बढ़ो ना. कहते हैं कि मूविंग फॉरवर्ड टुगेदर इन फेथ. हम लोग विश्वास में साथ साथ आगे बढ़े. विश्वास एक ऐसा टॉपिक है कि हम लोग बिना विश्वास के लाइक परमेश्वर खुश नहीं कर सकते. आमीन. हम लोग के पास विश्वास उतना ज़्यादा होना चाहिए ताकि हम लोग परमेश्वर के खुश कर सकते हैं. हम देखेंगे कोलोसियंस 2:6-7 में देखते कि क्या कहती है बाइबल. As you therefore have received Christ Jesus the Lord, so walk in Him. जैसे हम लोग जब प्रभु परमेश्वर के हम लोग अपने जीवन में जब ग्रहण कर लिया है तो कहता है कि हम लोग उसमें बढ़ते रहे ना, उसमें चलते रहे. वो कहता है जिसे आज हम लोग परमेश्वर सबको हम लोग जानता है ना, हम लोग उसके अपन जीवन में हम लोग ग्रहण कर लिया है ना, तो हम लोग के कौन से के बैठक नहीं है. परमेश्वर के काम के लिए हम लोग आगे बढ़ो ना, आगे बढ़ते रहो. 7 में कहता है be rooted and built up in Him and established in the faith as you have taught, bounding in it with thanksgiving. कहते हैं और उसी में जड़ पकड़ लो. उसी में जड़ रूटेड एंड बिल्ड अप इन हिम. उसमें इतना ज़्यादा जड़ ऐसे पकड़ लो और उसमें बढ़ते रहो, उसमें बढ़ते जाओ. और जिसे तुम्हें सिखाया गया वैसे ही विश्वास में मजबूत बन जाओ. और वैसे ही विश्वास में मजबूत बन जाओ और धन्य करते रहो परमेश्वर के ना. फेथ में हम लोग की जड़ पकड़ लो. जैसे बोले परमेश्वर में हम लोग जड़ पकड़ लो. जैसे जब हम लोग एक पेड़ बोता है हम लोग मानता है पेड़ की जो जड़ है मजबूत रहे ना, ताकि पेड़ गिरो नहीं या मरो नहीं. तो उसी तरह हम लोग अपन जीवन के देखो कि हम लोग कभी भटको नहीं, कभी गिरो नहीं, कभी लाइक दूर नहीं जाओ. हम लोग चाहता है कि वो पेड़ जो है उसमें अच्छे से जड़ पकड़ ले. तो उसी तरह हम लोग अपन जीवन में आज देखो कि हम लोग आज कहाँ है. हम लोग परमेश्वर के जड़ को हम लोग देखा है, पकड़ा है कि नहीं ना. हम लोग के अपन लाइफ में देखिए कि है कि हम लोग परमेश्वर के जो जड़ है उसे पकड़ कर हम आगे बढ़ते हैं कि नहीं ना. बहुत जरूरी है कि परमेश्वर के जो वचन है उसे हमें अच्छी तरह से समझना चाहिए, उसके जकड़ना चाहिए. उसके जो जड़ है उसे हम लोग अच्छे से मजबूत बनो ताकि हम लोग सकता है मूव फॉरवर्ड होवे ना उस परमेश्वर के वचन के द्वारा. और हम देखते हैं Hebrews 6:11 chapter 11 verse 6, without faith it is impossible to please God ना. जब हम लोग के पास विश्वास है तो हम लोग परमेश्वर के खुश कर सकते हैं. अगर विश्वास नहीं है तब इट इज इम्पॉसिबल कि हम लोग नहीं सकता परमेश्वर के प्लीज करे ना. तो बहुत जरूरी है कि हम लोग के अंदर फेथ होना चाहिए. आमीन. अभी मैथ्यू 21 चैप्टर 21 में बताए फेथ इज द मस्टर्ड सीड कैन रिमूव माउंटेन्स. जब हम लोग के पास एक छोटा एक सरसों के बराबर दाना के बराबर जब विश्वास है तो हम लोग सकता एक पहाड़ की भी गिरा दे ना. उतना ज़्यादा हम लोग के विश्वास होना चाहिए परमेश्वर में कि हम लोग सकता पहाड़ के के गिर जाओ और पहाड़ गिर जाए. तो आज हम लोग देखो कि हम लोग के पास उतना ज़्यादा विश्वास है कि हम लोग सकता परमेश्वर के नाम से पेड़ को गिरा दे ना. विश्वास एक ऐसा शब्द है, विश्वास. बिना विश्वास के द्वारा हम लोग परमेश्वर खुश नहीं कर सकते. आमीन. फिर हम लोग देखते हैं लाइक वी कैन सी मेनी माइटी मेन इन द बाइबल जो मूव फॉरवर्ड हुए हैं ना, जो मूव फॉरवर्ड हुए हैं.
वो लोग कितना मिरेकल करे है परमेश्वर के नाम से और विश्वास से। क्या आज हम सकता है उसे करे? हम लोग एकताई में होकर हम सकता कितना काम करे परमेश्वर के लिए ना। एकताई में हो जाओ और हम लोग सकता कितना काम करे परमेश्वर के लिए। हम लोग सकता मिरेकल करे नो। हम जब बाइबल पढ़ता सकता बाइबल में कितना मेन लोग है, कितना कार्य लोग करते हैं परमेश्वर के लिए। तो हम लोग क्या आज एकताई में होकर हम लोग नहीं सकता करे? हम लोग के वचन लेके परमेश्वर के अपनाए कि हम लोग के बैठे के नहीं है ना। वी कांट सिट डाउन, वी हैव टू मूव फॉरवर्ड टुगेदर ना। हम लोग के बहुत ज़रूरी है कि एकताई में होना और परमेश्वर के कार्य करना। अगर हम लोग वचन लेकर हम बैठे रह गए तो दुनिया में लोग कुछ नहीं कर पाएगा ना। वी हैव टू मूव फॉरवर्ड टुगेदर। जेम्स हम लोग जेम्स यानी अब्राहम के हम लोग देखेंगे हिब्रूज 11:8 हम लोग अब्राहम के देखते हैं। बाय फेथ अब्राहम ऑफर्ड अप हिज ओनली बिगॉटन सन। देखो वो विश्वास से चला के अपने लड़का की सेक्रीफाइस करे। उसके पास विश्वास रहा कि परमेश्वर और मिरेकल करी। ही मूव फॉरवर्ड होइज ना अब्राहम। चुपे बैठी इसने वो काम जो परमेश्वर उसके बताए सु करी सु काम। अब बताए डू यू सी दैट फेथ जेम्स 2:22 में बताया डू यू सी दैट फेथ वाज वर्किंग टुगेदर with his work? Do you see that faith was working together, made perfect with his works, and by works faith was made perfect? ना बता है यहाँ पर देखते हैं अब्राहम विश्वास में और काम दोनों साथ में किया। वो विश्वास भी किया और वहाँ पे काम भी किया ना। वो लाइक कौन सी बोला जाए, लाइक खाली विश्वास नहीं, वहाँ पे हम लोग एक्शन भी करे कि ना। मान लो हमारा चेयर में बैठा है, हम लोग विश्वास करा कि वो चेयर टूटी नहीं ना, हम लोग बैठ जाए उसमें अच्छा से। वी हैव फेथ ना कि वी कैन सिट डाउन ऑन द चेयर। तो हम लोग उसमें बैठ गया, चेयर टूटा नहीं, हम लोग के पास विश्वास रहा कि चेयर नहीं टूटी ना, हम लोग बैठ गया उसमें। तो उसी तरह से अब्राहम यहाँ पे काम भी करीस, वहाँ अपन फेथ भी रखी से और वहाँ पे काम भी करीस, दोनों चीज मिला के तब वो गॉड के आगे एक परफेक्ट मैन बना। आमीन। तो उसी तरह हम भी लोग फेथ ले लिया, वो फेथ लेके बैठो नहीं, वी हैव टू डू द एक्शन टू ना। हम लोग एक्शन भी करे के है तब हम लोग सकता है आगे बढ़े, तब हम लोग सकता है आगे बढ़ते रहे ना। और फिर हम देखते हैं कि और लाइक विश्वास जिसे भी हम लोग सुना है होप के बारे में ना। अब ये सब चीज मेरा मांगो साथे रहो, फेथ होप नो, ये सब चीज जिससे लव यूनिटी मांगो, सब कुछ रहो ना, तब सकता आगे आगे बढ़ते रहे। एक चीज पे नहीं, खाली होप रखो नहीं सकता बड़ी मांगो, होप फेथ नो लव सब कुछ मांगे साथे रहो, तब सकता आगे बढ़ते रहे ना। और आज हम यही मानता कहे कि जो फेथ है वो बहुत लाइक विदाउट फेथ वी कांट डू एनीथिंग। हम लोग पास में वो फेथ रहो और फेथ के द्वारा हम लोग सकता आगे आगे बढ़े ना। हम लोग सकता है मिरेकल करे, लाइक हम लोग सकता फेथ के द्वारा इतना फेथ हम लोग रख के हम लोग के ऊपर हाथ रख के प्रार्थना करा उसके चंगाई पाए जाए ना। उतना फेथ मांगो हम लोग के पास रहो, तब हम लोग सकता वो काम करे ना। एक टाइम हो परमेश्वर बोले जहाँ पे 2-3 मेरे नाम के इकट्ठे होते मैं उसके मन में रहता हूँ। तो हम लोग सब साथे हो जाओ, प्रार्थना करो एक दूसरे के लिए ना। एक टाइम में हम सब सिस्टर्स हो जाओ घर पर जो बीमार है फेथ के द्वारा उसके प्रार्थना करो ताकि वो चंगाई पाए जाए ना। परमेश्वर के वचन बताओ विश्वास के द्वारा ताकि वो लोग भी परमेश्वर के समझे, जिसे आज हम लोग अपनाया है परमेश्वर के। तो हम लोग कहा बैठो, हम लोग भी मूव फॉरवर्ड हो ना। हम लोग के मूव फॉरवर्ड होना बहुत ज़रूरी है। आज हम लोग जांचो अपन अपन जिंदगी में कि हम लोग आज वचन लेके सिर्फ बैठा है या हम लोग मूव फॉरवर्ड होता है, हम लोग आगे बढ़ता है। आमीन। यही हम लोग के आज बहुत ज़रूरी है कि हम लोग एकताई में होकर और आगे बढ़ते रहो। आमीन। आज जब हम मांगता है जावे कहीं पे विटनेस करे, हमारे पास एको सिस्टर्स नहीं है, तो हम प्रेयर करते हैं कि गॉड हमें सिस्टर्स ताकि हम मिल के एक टाइम में होकर हम लोग परमेश्वर के कार्य को आगे बढ़ाते रहे। आमीन। तो ये आज हमारा छोटा से वचन है
कि हम लोग याद करें कि हम लोग जब परमेश्वर के अपन जीवन में ग्रहण कर लिया है, उसे अपना ही लिया है, तो हम लोग के आगे आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है। आमीन। और वही है कि फेथ विदाउट फेथ इट इज़ इम्पॉसिबल टू प्लीज गॉड। अगर हम लोग फेथ रख के चुपे बैठेगा तो हम लोग परमेश्वर को प्लीज नहीं सकता करे। आमीन। सो इसी तरह बस यही छोटा सा हमारा स्पीच रहा, छोटा सा मैसेज रहा कि आप लोग इसमें मैसेज को सुना है, समझा है और सोचेगा, विचार करेगा कि हम लोग भी मूव फॉरवर्ड है परमेश्वर के लिए। आमीन। We can see here that Abraham's faith and walks together and made him perfect ना। तो इसी तरह हम भी लोग काम करो और विश्वास दोनों साथ में रखकर परमेश्वर के कार्य को आगे बढ़ाते रहे। आमीन। मेरे बाद मिलकर दुआ करते रहना, माँ का दिवस को याद करते ही रहना। मेरे बाद मिलकर दुआ करते रहना, माँ का दिवस को याद करते ही रहना। माँ की ममता है कितनी प्यारी, तुझको पिलाया खिलाया अपने गले से लगाया। माँ की ममता है कितनी प्यारी, तुझे पिलाया खिलाया गले से लगाया। मेरे बाद मिलकर दुआ करते रहना, माँ का दिवस को याद करते ही रहना। मेरे बाद मिलकर दुआ करते रहना, माँ का दिवस को याद करते ही रहना। बच्चों माँ को कभी भी ना ठुकराना, उसे सदा प्यार करते ही रहना। बच्चों माँ को कभी भी न ठुकराना, उसे सदा प्यार करते ही रहना। मेरे बाद मिलकर दुआ करते रहना, माँ का दिवस को याद करते ही रहना। मेरे बाद मिलकर दुआ करते रहना, माँ का दिवस को याद करते ही रहना। जब तुम बीमार हो जाते थे तो माँ रात भर जागती, अपने नींद खो देती लेकिन तुझको सीने से लगाती। जब तू बीमार हो जाती माँ रात भर जागती, अपनी नींद खो देती तुझे सीने से लगाती। मेरे बाद मिलकर दुआ करते रहना, माँ का दिवस को याद करते ही रहना। मेरे बाद मिलकर दुआ करते रहना, माँ का दिवस को याद करते ही रहना। कितने आंसू बहाए माँ अपने औलाद के लिए, जब औलाद घर छोड़कर चले जाते थे। कितने आंसू बहाए अपने औलाद के लिए, जब औलाद घर छोड़े चले ही जाते। मेरे बाद मिलकर दुआ करते रहना, माँ का दिवस को याद करते ही रहना। मेरे बाद मिलकर दुआ करते रहना, माँ का दिवस को याद करते ही रहना। अगर माँ ना होती तो तुम भी ना होते, तो उनके लिए मसीह को धन्य करते रहना। अगर माँ ना होती तो तुम भी ना होते, तो उनके लिए मसीह को धन्य करते ही रहना। मेरे बाद मिलकर दुआ करते रहना, माँ का दिवस को याद करते ही रहना। मेरे बाद मिलकर दुआ करते रहना, माँ का दिवस को याद करते ही रहना। जैसे मसीह ने तुमसे प्रेम किया, वैसे तुम भी अपने माँ से प्रेम करना। जैसे मसीह तुमसे प्रेम करता, वैसे तू अपनी माँ से प्रेम ही करना। मेरे बाद मिलकर दुआ करते रहना, माँ का दिवस को याद करते ही रहना। मेरे बाद मिलकर दुआ करते रहना, माँ का दिवस को याद करते ही रहना। मैं आज आपको लव के बारे में बताऊंगी, जो कि फर्स्ट कोरिन्थियंस चैप्टर 13 वर्स 1 में है।
जैसे कि इंसान के रहन सहन कैसा होता है ना, उसके बातचीत, उसके चाल चलन जैसे कैसा रहता कि जो मसीह में भी रहते नहीं भी रहते हैं तो उसके जैसे मतलब है वो कैसे उसका रहन सहन है, प्यार से बोले जैसे संतोष रखे अपने जैसे ना कि हम लोग प्यार को सबके बांटे और प्यार को सबसे शेयर करे, सबके अपना लव दिखाए कि हम इस रकम से प्यार करते। कलेशिया में आए, ये नहीं कि खाली जब कलेशिया में रहे तब सभी से प्यार करे। प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, और जैसे कि आते हैं मिलते हैं, हर वक्त गले मिले, कहीं मिले उससे प्रेम से बातें करे ना, और अपना जो प्यार है उस अब दिखाए सबके ना, और लव और फेथफुल पैसन तीनों साथ में है ना। तो जैसे जब तुम किसी से प्यार करेगा तो वो भी तुमसे अपना प्यार दिखाएगा कि मैं भी प्यार करता हूँ। किसी के घर पे जाए तो भी प्यार से बातचीत करे, उठे बैठे उसके साथ में, और सब अपने भाई बहन से भी प्यार के साथ में रहे। जितने परिवार हैं हम लोग, जैसे यहाँ चर्च के मेंबर्स हैं, हम लोग के सबके प्यार से सभी से बात करना चाहिए। और जैसे कि आज मातृ दिवस है ना, तो हम लोग के अपने माँ को सबसे ज़्यादा प्यार करें, क्योंकि उन्हीं ने हम लोग के संसार में लाया है ना कि हमारे बच्चे हमसे प्यार करें। कितने के बच्चे हैं दूर है, कितने के बच्चे हैं नंगीच है, और कितने बच्चे जैसे हैं अपने माँ को प्यार नहीं देते और माँ को परवाह भी नहीं करते कि उसे भोजन, कपड़ा, पानी, रहने का जगह है या नहीं है। तो मैं आप लोग से ये विनती करती हूँ, जितने भी माँ हैं अपने माँ को प्यार करिए। अगर माँ नहीं है तो अपने सासू माँ को प्यार करिए, मादा इन लॉ को, जैसे वो भी तुम्हारी पति के माँ है ना, तो सभी को प्यार दीजिए। और अपने बच्चों को, छोटे से अपने बच्चों को यही शिक्षा दीजिए कि प्रेम से रहे और माता पिता का आदर करे, और माता पिता को जैसे कि वही तुम्हें बचपन से उंगली पकड़ कर चलाना सिखाते, भोजन देते, पढ़ाते लिखाते, तुम्हें एक होनहार व्यक्ति बनाते हैं ना, कि माँ जो है वो सबसे ही प्यारी चीज होती है ना। जब पिता भी है वो भी प्यार करता अपने बच्चों से। जब पिता सुबह घर से जाता है तो वही बोलता है, बाय किड्स, बाय बेटा, हम शाम को फिर मिलेंगे ना। तो इसी तरह हम लोग के जब बच्चे स्कूल जाते तो बोलते माँ मैं जाता हूँ स्कूल के, तो हम लोग बच्चे से भी बाय करते, बच्चे अच्छा शाम को जल्दी जाना, सुरक्षित जाना है ना। अपना प्यार उस जगह बच्चों को दिखाइए कि मैं आपसे प्यार करता हूँ, कि बाय करिए, शाम को जल्दी आना, कहीं जाना नहीं। और आते हैं बच्चे जब लौट के तो माँ उसे कुछ खाने को देती है ना, और प्यार करती है अपने बच्चों को ना। ये नहीं खाली बच्चे से प्यार करिए, अपने और जितने लोग घर में रहते सभी से प्यार करिए, मीठी बानी बोलिए, जैसे कि वो लोग तुम्हें यही कहे कि इसका बोली इतना अच्छा है और प्रेम है इसमें, इसके बात में प्रेम है, इसके रहन सहन भी अच्छा है, सब कुछ जैसे ना तुम उसके शो कर सकता है, बच्चों को भी शो कर सकता, नेबर्स को भी शो करता, नेबर्स को भी अपने प्यार की कर देना। और मैं आप लोग से ये कहती हूँ कि प्यार जो चीज़ है वो 4 शब्द का है, LOVE, लव ना। तो वो छोटा सा शब्द है लेकिन वो बहुत बड़ा है हम लोग के लिए। प्रभु यीशु देखो सभी से प्रेम करता है, और जो कुछ मांगो जल्द नहीं, जो समय आता तो देता है ना। वो भी हम लोग से प्यार करता है, तब तो वो हम लोग के देता है। मांगने से पहले वो जान जाता है कि तुम्हारा क्या मांग है ना, तो हम लोग के उस जगह पर जो चीज़ के मांग रहता है वो देता है। तो प्रभु यीशु जो है वो बच्चों से ज़्यादा प्यार करता है। बच्चों को यही शिक्षा दे दिए, कलीसिया को लाइए, प्यार से उससे सिखाइए कि
यही हम लोग के प्रभु है और ये सभी से प्यार करता है। और शो योर लव टू ईच एंड एवरीबॉडी ना, जैसे सभी को अपने प्रेम को दिखाए कि हम सभी से प्यार करते ना। और जो पेशेंट है संतोष ना, संतोष से रहिए। जैसे कोई चीज़ तुम्हें मांग है कि ये चीज़ हम मांगता अभी तक हमें नहीं मिला, तो संतोष में रहिए। प्रभु यीशु को याद करिए सब सुबह शाम, उससे प्रेम रखिए और वो ही तुम्हें देगा। जब संतोष नहीं रहेगा तो नहीं मिलेगा। मैं आप लोग से यही कहती हूँ कि जैसे कि सुबह उठे सबसे पहले अपने आप को प्रेज द लॉर्ड, प्रभु यीशु हम तुमसे प्यार करते। अब और जब तुम्हारे घर में माँ है सबसे पहले माँ से बोलिए गुड मॉर्निंग माँ, और माम आई लव यू ना, उससे बोलिए। पति है पति से वही बोलिए, बच्चे से वही बोलिए। मैं कुछ दिन तक न्यूजीलैंड में रही, मेरी बहू किचन में भोजन बनाती, तो मैं जब देखती कि आवाज़ आने लगता तो मैं उठ के उसके पास जाती, तो वो सुबह मुझे पकड़ कर बोलती है आई लव यू मम, गुड मॉर्निंग मम, आई लव यू। तो मुझे कस के पकड़ के और उस जितना दिन मैं रही 3 महीना तक उतना दिन वो वही। तो प्रेम सबसे भारी चीज़ है ना। शो योर लव टू एवरीबॉडी, लव इज एटर्नल। आमीन। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। कि ये जो दुनिया है ये वन है कांटों का, तू फुलवारी है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। दुखन लागी है माँ तेरी अखियाँ, दुखन लागी है माँ तेरी अखियाँ। मेरे लिए जागी है तू, मेरे लिए जागी है तू, सारी सारी रतियाँ। ओ मेरी निंदिया पे अपनी निंदिया भी तूने वारी है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई, अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई। मैं मुस्काया तू मुस्काई, मैं मुस्काया तू मुस्काई, मैं रोया तू रोई। मेरे हंसने पे मेरे रोने पे तू बलिहारी है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। माँ बच्चों की जान होती है, माँ बच्चों की जान होती है। वो होते हैं किस्मत वाले, वो होते हैं किस्मत वाले जिनके माँ होती है। कितनी सुंदर है, कितनी शीतल है, प्यारी प्यारी है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। तू कितनी अच्छी